Hello guys, welcome back to my channel. So we were continuing the chapter control and coordination of class 10. So we have completed the nervous system coordination, which is a part of control and coordination in animals. After that we have completed part of control and coordination in animals, which is tropic movements and nastic movements. We were on the hormones, right? So in this video we will complete the chapter by reading the plant hormones as well as human hormones, okay, animal hormones, you see. So let us start with the topic control and coordination in plants. Control and coordination in plants. So this part we have completed, which is movement in plants, independent of growth and dependent of growth both. So if you have not seen these, then please check the last two videos. I recommend you. In the last video you can see it. Now hormones in plants. Let's read about the hormones, plant hormones, okay. So what are plant hormones? Plant hormones are chemical compounds which help to coordinate growth, development, and responses to the environment. So, what are the plant hormones? They are chemical compounds, means they are made of chemicals, they are composed of chemicals. So, what is their role? They help to coordinate growth, means to they help plant to grow, to develop, to respond to the environment, to respond to the stimuli. So in now we are going to study about the main plant hormones. So first main plant hormone is auxin. So where it is synthesized? It is synthesized at the shoot tip. Shoot, what is shoot? It is stem, right? It is synthesized at the shoot tip, helps the cells to grow longer. What is its functions? It helps the cells to grow longer, okay, to grow longer, means it helps in the elongation of cells, cell elongation. It is involved in phototropism. Where it is involved? It is involved in phototropism. Let us uh, revise the functions of auxin again. It is synthesized at the shoot tip. It helps the cells to grow longer, or you can say it helps in cell elongation, and it is involved in phototropism. What is phototropism? The growth in terms of light. Yeah, growth in terms of light. Now the next hormone is gibberellin. It helps in growth of the stem. It helps in growth of the stem. So what is the difference between gibberellin and auxin? The difference is very simple. Here, suppose this is your stem. Okay, this is your stem. Okay, let us take the brown stem. Okay, so suppose this is your stem. So what the gibberellin will do, it will help the stem to grow like this. Sorry, what the auxin will do, it will help the stem to grow like this, and gibberellin will help the stem to grow like this. Okay, understood? So this is the function of auxin. Which one? This one. Oh yeah. This one is a function of auxin, and the next one is the function of gibberellin. This is a function of gibberellin. Okay. Now next we are talking about cytokinin. Cytokinin, it is also a plant hormone which promotes cell division. Auxin helps in in what does auxin helps in? It helps in cell elongation, right? Elongation. And cytokinin helps in cell, oh, cell division, okay. So cell elongation means this is a cell, it helps the cell to grow longer, and cell division means this is a cell, it will divide further into more cells, okay, understood? This was the major means main difference between cell elongation and cell division, okay. So now auxin helps in cell elongation, promotes shoot growth, and it is involved in phototropism. And gibberellin helps to in the
growth of the stem. Cytokinin promotes cell division. Next function of cytokinin is that sorry function of where it is presence, where it is present. Okay, so it is present in greater concentration in areas of rapid cell division such as fruits and this seeds. So where it is present, so as we have read the function, that its function is that it promotes cell division. So similar is its presence, it is present on the areas where you need to divide the cells further, the where the cell division occurs rapidly. So we, which are those areas? Those areas not other than fruits, as we have as rapid cell division of cells is required as rapid cell division is required for the growth of fruits, right? And seeds also, अगर seeds ही डिवाइड नहीं होंगे तो आपका आगे क्या बनेगा? फ्रूट, या आपका कह सकते हो प्लांट, क्योंकि सीड से ही दोनों चीजें बनती है, राइट? तो कुछ भी नहीं बनेगा आपका, राइट? नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड. सो अगर मैं आपको बताऊं, पहले थोड़ा सा फ्लो चार्ट से देखते हैं. जो आपके प्लांट हार्मोन है, ठीक है, जो आपके प्लांट, ओहो फिर नीचे आ जाता है, ये प्लांट हार्मोन है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. सो विच आर दोज टू पार्ट्स? दोज टू पार्ट्स आर ग्रोथ regulators and growth inhibitors. सो जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनमें आते हैं आपके ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकिनिन. और जो आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं उनमें आते हैं आपके एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. ठीक है, ये एक मेन आपका क्या है, फ्लो चार्ट है प्लांट हार्मोन्स का. यहाँ पे आप कैसे बना सकते हो इसको? यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लांट हार्मोन्स, ठीक है. वहाँ पे अच्छे से बना नहीं था ना, इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा. और यहाँ पे लिख सकते हो ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स. उसके बाद यहाँ पे ऑक्सिन. जब आपका प्लांट हार्मोन्स के रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तब आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हो. ऑक्सिन आ जाएगा, साइटोकिनिन आ जाएगा और गिबरलिन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एब्सिसिक एसिड आ जाएगा और यहाँ पे इथाइलिन आ जाएगा. ठीक है, कुछ ऐसा बन सकता है. और हमने ऑक्सिन देख लिया था, गिबरलिन, साइटोकिनिन. अब हम प्लांट इनहिबिटर्स पर थे. सो एब्सिसिक एसिड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड? इट स्टॉप्स ग्रोथ. What does abscisic acid do? Is it stops growth, right? जो एब्सिसिक एसिड है ना, वो आपका क्या करता है, वो जो सीड होता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. उसका न्यूक्लियस को ना मतलब कि उसके न्यूक्लियस को ख़राब कर देता है, जिसके लिए जो सीड है वो रप्चर नहीं कर पाता और प्लांट नहीं बन पाता, सीड ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, और एब्सिसिक एसिड्स की वजह से ही नेचुरली ये प्रेजेंट होता है, मगर हम एज अ फर्टिलाइज़र भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रास वगैरह जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, हाँ, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. मगर अगर आप अच्छे प्लांट्स पर डाल दो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है. कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है, मगर क्या है वो, मतलब कि
अच्छा काम करते हैं अगर थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो। मगर कुछ दवाइयों में ना वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और किसानों को नहीं मालूम होता, और उनकी फसल फर्टिलाइजर की वजह से भी कई बार ख़राब हो जाती है। और जो एब्सिसिक एसिड है उसकी वजह से क्या होता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब कि जो लीव्स हैं वो जड़ती हैं, ठीक है। और स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन, ठीक है, इसका काम क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है। अगर हम अप्रोप्रिएट डोज दे इथाइलिन की तभी ऐसा होगा, मगर अगर इसकी मोर डोज दी जाए प्लांट को तो ये रिटार्ड कर देता है ग्रोथ को कम कर देता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द हॉर्मोन्स इन, सॉरी यहाँ पे है मैंने बना भी दिया, या ये रहा ये रहा हमारा फ्लोचार्ट जो उसके बारे में पहले मैं आपको बना के दिखाया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है। हॉर्मोन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन? Hormones are the chemical substances which coordinate the activities of living organisms and also their growth. जो मतलब कि प्लांट हॉर्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स की डेफिनेशन सेम ही है। जो प्लांट हार्मोन क्या करते हैं वो उनकी डेवलपमेंट में, ठीक है, रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं, राइट, कोऑर्डिनेशन इन ग्रोथ, राइट। और जो एनिमल हार्मोन है वो भी, जो प्लांट हार्मोन है वो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो एनिमल हार्मोन है वो भी केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं उन एक्टिविटीज़ में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी ग्रोथ में भी कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। अभी हम 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ग्लैंड्स है वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। सो एक एक के बारे में बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अपनी सीक्रीशन को एक डक्ट की फॉर्म में सीक्रीट करती हैं। जो एक डक्ट की फॉर्म में, डक्ट की फॉर्म नहीं, मतलब कि एक डक्ट के बीच में से जो उनकी सीक्रेशन है वो एक डक्ट के बीच में से अब टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। लाइक जो अपना आपका लीवर है वो आपके स्टमक में सिक्रीशंस करता है, राइट। बाइल जूस आपका लीवर सिक्रीट करता है और बाइल जूस लीवर से लेके स्टमक तक एक डक्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। और सैलिवरी ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स में से भी क्या है, डक्ट के फॉर्म में ही आपके माउथ में सलाइवा निकलता है, ठीक है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या करते हैं, वैसे वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी है, दोनों तरह से। कैसे, सबसे पहले हम एक्सोक्राइन देख लेते हैं, फिर एंडोक्राइन में भी जो पेनक्रियाज आएगा तब हम एंडोक्राइन कैसे देख लेंगे। जो पेनक्रियाज है वो सीक्रीशंस करते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ताकि के जो एसिडिटी है उसकी कम हो सके, ठीक है, क्योंकि जो आपका HCl है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ना, एक एसिड है HCl, तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ख़राब ना हो जाए इसलिए वो कुछ बेसिस को रिलीज करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो डक्ट के थ्रू जाता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो भी डक्ट के थ्रू ही स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस को और HCl को कह सकते हो सीक्रेट करती है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनकी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। हम एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स की इस चैप्टर में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। और वो ग्लैंड्स क्या कौन सी होती हैं, दीज ग्लैंड्स सीक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द ब्लड विच फाइनली रीचेस टू देयर टारगेट ऑर्गन थ्रू द ब्लड। इसमें क्या था कि डक्ट क्या होता है, एक मतलब कि पैसेज सा होता है, पतली सी पाइप कह सकते होती है, पतली सी छोटी सी, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन है वो डक्ट के थ्रू जाता है, उनका जो भी सिक्रीशन होता है। जो एंडोक्राइन का होता है, ठीक है, उनका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब जो भी हार्मोन होता है, ठीक है, वो सीधा ब्लड में उसको सीक्रेट कर देते हैं, ब्लड में सीक्रेट कर देते हैं और ब्लड के थ्रू ही वो उनके टारगेट ऑर्गन तक जाता है। इसके एग्जांपल्स है थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है,
इनके फंक्शंस भी देखेंगे हम एक एक करके इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना। मैंने पहले ही बोला एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनालाइन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके ग्रोथ हार्मोन को, वैसे आपको सिर्फ ग्रोथ हार्मोन है और बहुत सारे वो हार्मोन्स सीक्रेट करती है, जैसे LSH MSH, ठीक है। चलो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है, शायद हाँ मैंने अपने नोट्स में उनका थोड़ा सा जिक्र किया है, राइट। सो नेक्स्ट है आपके हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है ना, वो दोनों के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एंडोक्राइन के भी और एक्सोक्राइन के भी। मतलब कि वो जो अपना प्रोडक्ट है वो ब्लड में भी सीक्रेट करते हैं और डक्ट के थ्रू भी वो सीक्रेट करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं लीवर एंड पेनक्रियास, ओके। सो अभी हम पहले ना एक एक ग्लैंड के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनका हम इकट्ठा क्या है एक चार्ट एक टेबल देख लेंगे, राइट। सो फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी लोकेशन क्या है, ये ब्रेन में लोकेटेड होती है, एक तरह आप कह सकते हो जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे, मतलब कि मिड ब्रेन में नहीं होती है, होती फोर ब्रेन में है, फोर ब्रेन में होती है, राइट। और ये बीन शेप्ड होती है, मतलब कि थोड़ी सी ये ऐसी सी होती है बीन की तरह की शेप की, ठीक है। और वो इसका साइज बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इतना स्मॉल इतना छोटा साइज होने के बावजूद भी ये अपने आप को मास्टर ग्लैंड कहलाती है, देखो दोस्तों, ठीक है। और जो बाकी कई ग्लैंड्स हैं वो उनका साइज इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, मगर फिर भी वो अपने आप को मास्टर ग्लैंड नहीं कहला पाई। चलो वो, हाँ, और इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, जो मतलब कि ये जो आगे पढ़ने वाले हो आप थोड़ा सा, हाँ इनमें मैंने बताया ना कि मैंने पिट्यूटरी के सारे हॉर्मोन्स के बारे में बताया है। सो या मैंने सारे के बारे में लिखा हुआ अपने नोट्स में। सो एक एक करके सबको पढ़ेंगे, मगर आपके सिलेबस में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही है, ठीक है, आपकी बुक में। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टेरियर लोब होता है। एक एंटेरियर एंड एक पोस्टेरियर लोब होता है, ठीक है। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। जो हाइपोथैलेमस है ना, ठीक है, उसको मास्टर ऑफ मास्टर, अगर ये है पिट्यूटरी है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड, तो जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करेगा वो क्या होगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होगा, ठीक है। हाँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ओके। अभी हम देखते हैं जो मास्टर ग्लैंड है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटीरियर लोब एंड पोस्टेरियर लोब, उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वर्क कैसे करती है, ठीक है, कि इसका क्या असल में रोल क्या होता है। मान लीजिए आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में हो गया इंक्रीज हो गया, इसका जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन को गया, ब्रेन के पास स्पेशल कहाँ पे, हाइपोथैलेमस को गया। उसके बाद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि करना क्या है, ठीक है। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पेनक्रियास को सिग्नल देगी कि आप जो आपका हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, उसको सीक्रेट कीजिए। उसके बाद जो पेनक्रियाज है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को सीक्रेट करेंगे, और जो फिर इंसुलिन है वो आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। मगर अगर यहाँ पे पेनक्रियाज जो आपके फेल हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा ग्लूकोज को, सॉरी, इंसुलिन को सीक्रेट नहीं कर पाती और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो फिर आपको इंसुलिन की टीके लगाने पड़ती है। आप कह सकते हो कि आपको डायबिटीज़ हो जाता है उस समय, राइट। अभी पहले हम एंटीरियर लोब के बारे में पढ़ते हैं कि एंटीरियर लोब पार्ट में होता क्या है पिट्यूटरी के इस पार्ट में, ठीक है। इसके एक एक हार्मोन के बारे में और उसके एक एक फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो हार्मोन इंटीरियर लोब सीक्रेट करता है वो है ग्रोथ हार्मोन। सिंपल है, ये क्या है, आपके जो है
हाइट को, आपकी ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ को, आपकी हाइट को क्या है, रेगुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन, राइट। जो MSH है, क्या है, इसका फुल फॉर्म है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानिन क्या है, एक हार्मोन है जो आपके स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके मेलानिन सिक्रीशन क्या है, ज़्यादा है तो आपका स्किन कलर डार्क होगा, अगर कम है तो आपका स्किन कलर लाइट होगा, ठीक है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जिनमें क्या है मेलानिन की सिक्रीशन कम होती है, उनको क्या है स्किन इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। मतलब कि जो जितना ज़्यादा गोरा होता है उसको उतने ज़्यादा स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। जो आप देखोगे कि अफ्रीका वगैरह के जो लोग होते हैं ना, उनकी स्किन बिल्कुल साफ साफ पड़ी होती है, ठीक है। उनको कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता, कोई फुंसी वगैरह कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें मेलानिन की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होती है, राइट। उसके बाद है आपका ACTH, ACTH, ठीक है। इसका क्या है, उसके बाद जो भी आपके जो हॉर्मोन्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, बस ये दो इसके मेन हॉर्मोन्स हैं जो इसके खुद के काम करते हैं। बाकी जो भी ये हॉर्मोन सिक्रीट करती है ना, वो दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए ही सिक्रीट करती है, ठीक है। देख लीजिए, आप एक एक करके सारे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हार्मोन वो सिक्रीट करती है वो है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिसोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिक, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। वो क्या है, एड्रीनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है, मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसको सिग्नल देता है कि कब आपको क्या है ज़्यादा सिक्रीशन करनी है एड्रीनल लाइन की, कब नहीं करनी, कब करनी है, राइट। उसको रेगुलेट करता है। और उसके बाद है आपका LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। ये क्या है, ये जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करता है। मतलब कि बॉयज़ में क्या है, बियर्ड आ जाती है, राइट। आर्मपिट्स में ग्रोथ ऑफ हेयर, और जो आपकी वॉइस है वो लो पिच वॉइस हो जाती है, ठीक है। वो थोड़ी भारी सी वॉइस हो जाती है, राइट। And erection of panties and all that. And in females you can say the breasts grows, or means high pitch voice, तीखी आवाज हो जाती है लड़कियों की, एंड ऑल दैट, राइट। और वो फीमेल्स में ओव्यूलेशन को भी हेल्प करता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज ओवरी, यूटेरस, फलोपियन ट्यूब, वेजाइना एंड ऑल दैट, जो भी आप मतलब कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उनमें क्या है, ओवुलेशन में हेल्प करता है। ओवुलेशन क्या होता है, जो आपका एग रिलीज होना होता है ओवरी में से, उसको हम ओवुलेशन कह देते हैं, ठीक है। द रिलीजन ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, क्या है, हर महीने एक एग ओवरी रिलीज करती है, उसको ओवुलेशन कर देते हैं, और ये ओवुलेशन में हेल्प करता है, ओके। बाद आपका नेक्स्ट आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग फंक्शन है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फीमेल्स में एग को मैच्योर करने में हेल्प करता है, मींस जो फीमेल का मीट होता है, और मेल्स में वो स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करता है, मतलब कि जो मेल का मीट होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट इट्स, मतलब कि ये देखिए, जो मेन थे इसके GH और MSH थे, बाकी जो है वो बाकी ग्लैंड्स को, लाइक ACTH आपको एड्रेनालाइन को, LH और FSH जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनको क्या है कंट्रोल करेगा, मतलब कि इन हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा, इन हार्मोन्स की सीक्रेशन को। और जो ग्लैंड्स है वो होगा टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। और जो TSH है वो आपके थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। और जो TH है वो थाइमस ग्लैंड को, और जो PH है वो पैराथायराइड ग्लैंड को। एक एक ग्लैंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं जो TSH है उसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या है,
थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है अपना हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। उसके बाद है थाइमस हार्मोन, टीएच, थाइमस हार्मोन। ये क्या स्टिमुलेट करता है? थाइमस ग्लैंड को। और जो पैराथायराइड हार्मोन है वो पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या है, इन दोनों के बारे में मेन पता होना चाहिए, बाकी तो इतने ज़रूरी नहीं है 10th में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट होता है, वो होता है पोस्टेरियर लोब। पोस्टेरियर लोब भी जो है वो किसका पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये दो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, एक ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रेसिन। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है वो हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क को रिलीज करने में, मीन्स ये मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये एक और हेल्प करता है यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। मतलब कि जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है तब ये जो आपका यूटेरस होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि जो बेबी की डिलीवरी है वो अच्छे से हो सके। राइट। सो दो फंक्शन होते हैं ऑक्सीटोसिन में, ऑक्सीटोसिन के। उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन ये रिलीज करता है वो होता है वेसोप्रेसिन, और इसको आप एडीएच भी कह देते हो, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये ब्लड में से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ये मतलब कि और ये क्या है, यूरिन की प्रोडक्शन, मेनली ये क्या है, आपके किडनी को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक आपके ब्लड में से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, और एक आपके जो यूरिन का प्रोडक्शन है उसके अमाउंट को भी ये कंट्रोल करता है, और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आपका आता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन नेक रीजन। और ये हॉर्मोन्स, तीन हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। वैसे आपके मेन यहाँ पे है थायरॉक्सिन, मेन आपको 10th में थायरॉक्सिन है। वैसे असल में ये तीन हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। तीन हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? एक तो है ट्राइडोथायरोनाइन, एक है थायरॉक्सिन, एक है कैल्सिटोनिन। ठीक है, एक एक करके सभी के फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ T3 मींस ट्राइडोथायरोनाइन एंड थायरॉक्सिन। इन दोनों का फंक्शन एक ही होता है, जो कि होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। एंड जो कैल्सिटोनिन होता है उसका जो फंक्शन होता है वो होता है कैल्शियम को ब्लड में से रीअब्सॉर्ब कर, सॉरी, कैल्शियम को ब्लड में से अब्सॉर्ब करना। ओके, सो अगर जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है, राइट, थायरॉक्सिन ग्लैंड है, अगर वो डिसऑर्डर हो जाए तो आपको दो बीमारियां हो सकती हैं। एक हो सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब लेस, ठीक है, लेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। एंड एक हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि मोर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये आपके दो डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो गलत काम करने लग जाए। ठीक है, उसके बाद है जो कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बॉलिज्म, इन दोनों को मिला के आपका बनता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो पहले आप समझिए कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है। उन दोनों को मिला के जो बनता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। राइट, मीन्स मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स का होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। अब देखते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, किसी सब्सटेंस को आप उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हो उसको हम कैटाबॉलिज्म कह देते हैं। राइट, लाइक स्टार्च है, स्टार्च को पहले हम ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, स्टार्च ब्लड में पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जो ग्लूकोज है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी हाउस ऑफ सेल। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है वो तीन चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक एटीपी, एनर्जी करेंसी हो जाएगा। ठीक है, और जो एनर्जी करेंसी है आपके सेल की, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक H2O। ठीक है, और जो एटीपी है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन, ओ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
ये आपने 9th क्लास में भी करा होगा। ओके, ये आपका एटीपी का फुल फॉर्म। ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। ओके, ये था आपका ब्रेकिंग डाउन। इसमें क्या हुआ, आपका जो स्टार्च है वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और जो ग्लूकोज है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, CO2 और H2O में ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद आपका आता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कि बिल्डिंग अप, ठीक है, किसी चीज़ का बिल्डअप हो जाना। जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जबकि सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, सनलाइट, वाटर, वो क्या होता है, मिलकर मिलकर क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है। और जो ये प्रोसेसेस चलते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म के मतलब कि जो सारी रिएक्शंस चलती है आपकी बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म में उसको लिविंग, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको हम क्या देते हैं, मेटाबॉलिज्म। वेरी सिंपल। उसके बाद आपका जो आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। हमने दो ग्लैंड पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हमने पढ़ लिया पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, वो थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही एम्बेडेड होता है। जो थायरॉयड ग्लैंड है वो कहाँ पे होता है, मान लीजिए एक अच्छे से बनना नहीं, फिर भी आई विल ट्राई। सो गाइस, आई हैव ट्राइड अ लॉट, मगर मेरे से अच्छा नहीं बना। मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, यहाँ से ये आपका जा रहा है ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया है, राइट। और यहाँ पे है आपका थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड का जो कुछ ऐसा होता है जो ना आपका नीचे बनाया हुआ है, और यहाँ पे नेक रीजन में आपका थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और उस पर ना ऐसे ऐसे एम्बेडेड होते हैं, जो कि उसमें खुबा होता है एक तरीके से पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, जो ये आपको बिंदु बिंदु से दिख रहे हैं ना, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट है, ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, ऑफ कोर्स नेक रीजन में, और थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर एम्बेडेड होता है। और ये हार्मोन जो रिलीज करता है उसका नाम है पैराथ्रोमन। पैराथ्रोमन ये रिलीज करता है। अभी पैराथ्रोमन का फंक्शन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से और ब्लड में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब कि ये पैराथ्रोमोन जो हार्मोन है वो हेल्प करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएँ स्मॉल इंटेस्टाइन में से और ब्लड में से। ठीक है, अगर इसका डिसऑर्डर हो जाए तो क्या होता है, ठीक है, अगर आपका जो पैराथ्रोमन है उसका जो रिलीज वो कम रिलीज होने लगा, उसका जो रिलीज रिलीजिंग अमाउंट है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब क्या होगा, तो आपको जो बीमारी होती है उसका नाम है ऑस्टोपोरोसिस। ठीक है, तब ऑस्टोपोरोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। ओस्टो ओस्टियो ओस्टियो से मतलब है बोन्स, और पोरोसिस से मतलब है पोर्स। ठीक है, ओस्टियोसिस में क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती है उनमें पोर्स डेवलप हो जाते हैं, आपकी बोन्स वीकन हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास इज योर नेक्स्ट ग्लैंड। ही क्या है, यहाँ कहाँ पे लोकेटेड होती है, इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक। ये स्टमक के नीचे लोकेटेड होती है। ठीक है, और इसकी शेप क्या होती है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ से कुछ ऐसा, ओहो स्टमक भी नहीं अच्छे से बन रहा है यहाँ पे, तो वैसे तो बन ही जाता है कुछ ऐसा। मान लीजिए आपका स्टमक है, और यहाँ पे ना एक ऐसे से लीफ की तरह एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है आपका पेनक्रियास। ओके, और ये जो हॉर्मोन्स है वो दो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। एक ये रिलीज करता है इंसुलिन, और एक ये रिलीज करता है ग्लूकागन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। इंसुलिन का फंक्शन और ग्लूकागन का फंक्शन, दोनों का फंक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है। ओके, जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है, लोअर करता है। मतलब कि इंसुलिन की मदद से अगर आपकी जो शुगर है वो ज़्यादा हो रखी है तो वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ये ग्लूकागन है और ये ग्लाइकोजन में। ठीक है, ये है, ये क्या है, GLUCAGON
ओ एन, और ये क्या है, GLYCOGEN। इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का, इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाना। जो ग्लूकागन है वो हार्मोन का नाम है, जो ग्लूकागन है वो हार्मोन का नाम है। वेयर एज जो आपका ग्लाइकोजन है वो क्या है, वो है एक मीन्स फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। यू सी जो इंसुलिन है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, वो ब्लड शुगर के लेवल को डिक्रीज कर देता है और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जो ग्लूकागन है उसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज कर देता है। अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल कम हो रखा है तो उससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम है तो इंक्रीज हो गया, ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन की ज़्यादा सिक्रीशन होने से वो क्या है, डिक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि दोनों में होगा तो नॉर्मली, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट या फिर चेंज कर देता है, ठीक है। और जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो आपका है 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ओके। नेक्स्ट आपकी जो ग्लैंड है वो है ओवरीज। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी भी कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी के भी लोअर साइड में इन फीमेल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। और ये हॉर्मोन्स, दो हॉर्मोन्स रिलीज करती है, एक एस्ट्रोजन एंड एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो एस्ट्रोजन है उसका फंक्शन क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करके रखता है, उनको मेंटेन करता है और उनको जब प्यूबर्टी आती है तब उनको डेवलप करता है, राइट। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ओके। जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो टेस्टिस, ठीक है, ये भी एब्डोमिनल कैविटी के लोअर साइड में ही प्रेजेंट होती है इन फीमेल और इन मेल्स, ओके। इसका जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। आप इसको एस्ट्रोजन भी कह सकते हो या फिर टेस्टो, मतलब कि एक ही हार्मोन है, उसके दो नेम है, एस्ट्रोजन भी कहा जाता है और टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑल्सो। दो फंक्शन इसके, एक तो स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, एक मैच्योरेशन हो गया, और एक मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है पीनियल ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास प्रेजेंट है तो आप कह सकते हो कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में ही प्रेजेंट है। सो ये हार्मोन मेलानिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्लैंड, असल पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है, मगर पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी जो सीक्रेशन है उसको रेगुलेट करती है, राइट। और इसका फंक्शन क्या होता है, स्किन कलर प्रोडक्शन, स्किन कलर को प्रोड्यूस करना, स्किन को कलर देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थाइमस। जो थाइमस ग्लैंड है वो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। चेस्ट रीजन में कहाँ पे, आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपका मान लीजिए ट्रैकिया आता है, ठीक है। ट्रैकिया उसके बाद आके आपके दो ब्रॉन्चीज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपके क्या है, लंग्स है, राइट, फेफड़े, ठीक है। उसके बाद ये थाउजेंड ऑफ ब्रोंकियोल्स में आगे आगे ऐसे डिवाइड होता जाता है। चलो वो तो छोड़िए, हमने यहाँ पे तो जाना ही नहीं क्योंकि लंग्स में थाइमस ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता। और यहाँ पे जहाँ भी डिवीजन होती है ना, यहाँ पे आपका थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ओके। और ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, थाइमस हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करना है। मगर मतलब कि जब कोई भी आपके जो है बीमारी आती है, अटैक होता है बीमारी का, तो ये एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को रिलीज करता है। और इसके ना टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं, राइट। ओहो, टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो बी सेल्स है आपके वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, ठीक है। जो बी सेल्स है वो फॉर्म एंटीबॉडीज़, ओके। और जो टी सेल्स है वो हेल्प करते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। और जो असल में बनाते कौन है, वो बी सेल्स बनाते हैं, ओके। सो ये हो गया कि जब कोई भी
विदेशी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है आपकी बॉडी में अटैक करता है, तो थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। नेक्स्ट है आपका एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड क्या कहाँ पे लोकेटेड होता है? अबव बोथ द किडनीज। एड्रीनल ग्लैंड क्या है, मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे आपकी जो है कुछ मान लीजिए ऐसी किडनीज हैं, एक ऊपर को होती है थोड़ा सा, एक थोड़ा सा नीचे को होती है, और यहाँ पे ना किडनीज के ऊपर किसी और कलर से करते हैं, यहाँ पे किडनीज के ऊपर ना थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वाइट वाइट सा होता है, और यहाँ पे भी वाइट वाइट सा होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड। और यह एड्रीनलिन जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करती है। इसको हार्मोन ऑफ एक्साइटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है, और फ्लाइट एंड फाइट, मतलब कि जब भी ना कुछ डेंजरस सिचुएशन होती है तब आपकी बॉडी को ना प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तब ये क्या करती है, आपका जो मस्कुलर सिस्टम है उसको एक जो ब्लड है उसको ना एक स्केलेटल सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है। ये जो आपके मसल्स हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम कर देती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आर्टरीज के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो आपका क्या है, कम ब्लड जाता है, कम ऑक्सीजन जाता है। और ऑल्सो ये ब्लड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कम जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सेम केस होता है, जो आर्टरीज के इर्द गिर्द मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से ना आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा फास्ट बीट करने शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी को डेंजरस सिचुएशन में ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, और ये सब करके क्या है, जो आपकी बॉडी है वो किसी डेंजरस सिचुएशन को, लाइक आपकी किसी से फाइट हो गई ना, तब आपका जो आपका जो रंग है ना वो पील हो जाता है, क्योंकि पील मसल्स का रंग है जो स्पेशली वो पील हो जाता है। पील क्यों होता है? क्योंकि कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ठीक है, और ऐसे डेंजरस सिचुएशन में आपकी बॉडी को कौन रेडी करता है? एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सो नेक्स्ट है आपका मतलब कि एक मैंने टेबल बनाया है लास्ट में मतलब कि पहले तो मैंने एक एक करके ऐसे ऐसे लिखा था अपने नोट्स में, उसके बाद एक टेबल बना दिया था। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी लोकेशन कहाँ पे? अंडर द ब्रेन। ठीक है, हार्मोन्स क्या कौन कौन से रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन और अदर हार्मोन्स लाइक मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायमस हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स ये रिलीज करता है। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो हेल्प करता है आपकी हाइट को इंक्रीज करने में, और जो अदर हार्मोन्स है ये रिस्पेक्टिव ग्लैंड को क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं कि आपको क्या करना है, या तो कि आपको सिक्रीट करना है। ठीक है, कि आपको सिक्रीट करना है या रिलीज करना है अपने हार्मोन की सिक्रीशन को। जो हाइपोथैलेमस है ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, एक इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिटिंग। ठीक है, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि कोई भी जो ग्लैंड है उसको सिग्नल दे दो कि वो अपना हार्मोन है उसको रिलीज करे। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि जो भी ग्लैंड है उसको सिग्नल दे दो कि वो अपने हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दे, रोक दे। ठीक है, ये क्या करता है? रेगुलेट करता है हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस को पिट्यूटरी ग्लैंड में से। ओके, नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन ये सिक्रीट करता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कंट्रोल्स जनरल मेटाबॉलिज्म of fats, carbohydrates, and proteins in the body, and also the controls in this way it controls the growth of the body, right? अगर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगा तभी तो ग्रोथ कंट्रोल होगी ना। नेक्स्ट आपका एड्रीनल ग्लैंड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अबव द किडनीज इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एड्रीनलिन हार्मोन। ये क्या है? एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर कर देता है। इसको आप हार्मोन ऑफ एक्साइटमेंट भी कह जाते हो, हार्मोन ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है, और फ्लाइट एंड फाइट। फ्लाइट मतलब कि
बंदे पर जो है चपट्टा मार देना, अटैक कर देना, फ्लाइट, अटैक, राइट। मतलब कि जैसे एकदम से 5 पक्षी उड़ते हैं ना, वैसे एकदम से उड़ के बंदे पर अटैक करना। फाइट मतलब लड़ना, राइट। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियास। जो पेनक्रियास है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नियर द स्टमक, एक्चुअली बिलो द स्टमक, ठीक है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन भी करता है और एक ग्लूकागन भी करता है। मैंने लिखा लिखा नहीं शायद, ग्लूकागन, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों हार्मोन मिलके क्या है? ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है वो, एक मिनट जो आपका इंसुलिन है, राइट, इंसुलिन वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, राइट, इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। और जो आपका नेक्स्ट है ग्लूकागन। जो ग्लूकागन है हार्मोन, वो क्या करता है? वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, दैट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। अंडरस्टूड? ये हमने पीछे अच्छे से पढ़ा था। मतलब कि यहाँ पे आपकी सिर्फ रिवीजन हो रही है एक टेबल के फॉर्म में। जब आप वो सबको पढ़ के ना इस टेबल को पढ़ रहे हो तो आपकी सिर्फ रिवीजन हो रही है, नथिंग एल्स, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ, इंसुलिन, ठीक है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, दैट इज इट। सो पैराथायराइड ग्लैंड को क्या है? हमने देखा था, एक पिक्चर भी मैंने बनाई होती थोड़ी सी ऐसे कि ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ऐसे एम्बेडेड है, ठीक है, एम्बेडेड है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैराथ्रोमोन रिलीज करता है। और ये क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट। मैंने यहाँ पे शायद वहाँ पे सिर्फ कैल्शियम ही लिखा था, मगर ये कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के लेवल को रेगुलेट करता है। और ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से, राइट। और कहाँ से? 2 जगह से आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में से, राइट, एक ब्लड में से, राइट। नेक्स्ट है आपका थाइमस। थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट है? लोअर पार्ट ऑफ नेक रीजन एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट मैंने बताया था कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जहाँ पे आपके जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसे ब्रोंकियोल्स निकलते हैं, यहाँ पे लंग्स होते हैं, राइट। सो चेस्ट रीजन में मैंने लिखा है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थाइमस हार्मोन रिलीज करता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम, ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंड एक्टिवेट्स, राइट। नेक्स्ट है आपका टेस्टिस। टेस्टिस जो है आपकी ग्लैंड है वो मेल्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम क्या होता है? वो आपके टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट होता है ठीक है, मीन्स नियर पेनिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। इट हेल्प्स इन द स्पर्म प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन, आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज, राइट। नेक्स्ट इज मतलब कि हाँ, मतलब कि जो स्पर्म है, जो आपका मेल गमीट होता है, मेल गमीट विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, जो आप इन सब चीज़ों के बारे में रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे या पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। जो मेल गमीट है उसकी प्रोडक्शन में और इसकी मेच्योरेशन में कौन हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सर से देखो तो सर में तो कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होता। उसके बाद आपके गले में आता है, गले में क्या होता है? वोकल कॉर्ड होता है, वो या लैरिंग्स होता है, वो आपकी आवाज़ को कंट्रोल करता है। वहाँ पे कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है कि आपकी जो वॉइस है वो लो पिच वॉइस होती है, थोड़ी सी बारीक सी वॉइस हो जाती है, राइट, ठीक है, तीखी नहीं होती है। पिच मतलब कि तीखा होना वॉइस का, ठीक है। उसके बाद आर्म पिट्स में हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद मीन्स
बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी, पैनिस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जानी, एंड इरेक्शन ऑफ पैनिस, एंड नेक्स्ट इन द ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन जेनिटल एरिया, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन आर्म्स एंड लेग्स। देखिए ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज। उसके बाद ओवरी, ओवरी क्या है, फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट नियर यूटेरस, यूटेरस इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो यूटेरस के पास प्रेजेंट होती है, मतलब कि कुछ ये ऐसी सी होती है, एक फीमेल में 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, राइट। कुछ ऐसी सी होती है, राइट, दोनों पासे, दोनों तरफ ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। ये 2 हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, एक एस्ट्रोजन एंड एक प्रोजेस्ट्रोजन। प्रोजेस्टिरोन एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट एस्ट्रोजन है, वो एग प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग पुबर्टी, ठीक है। इन गर्ल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स कौन कौन से होते हैं? सिर में तो कोई भी नहीं होता, ना फीमेल्स के ना मेल्स के, मुंह में भी कुछ नहीं होता। उसके बाद हाई पिच वाइज हो जाती है। उसके बाद growth of hair on arms and legs and in genital area and in armpits, right, and menstrual cycle and breast size, growth of breast, right. These are all the secondary sexual characters in females, and it also helps in the ovulation. Ovulation means the process of releasing of a mature egg from the ovary is called ovulation, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो प्रोजेस्ट्रोजन है वो किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि यूटेरस को मेंटेन करके रखता है वो। मतलब कि ऐसा तो नहीं यूटेरस प्रेगनेंसी के टाइम पे फट जाता है, नॉट, इट इज़ नॉट सो ड्यू टू प्रोजेस्टिरोन और प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई iodized salt is necessary. I think I should write better. I can write better. Why iodized salt is necessary? Okay, why it is necessary? Iodized salt is necessary because वो salt, आयोडाइज सॉल्ट मतलब कि आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडाइज सॉल्ट का मतलब होता है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आयोडीन प्रेजेंट होता है, वो आयोडाइज सॉल्ट होता है। और आपके लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट नेसेसरी क्यों है? वो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो आयोडीन मिनरल है, आयोडीन एक मिनरल है, वो एक एसेंशियल पार्ट है थायरोक्सिन हार्मोन का, ठीक है। जो आयोडीन एक मिनरल है वो थायरोक्सिन हार्मोन का एक एसेंशियल पार्ट है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आपके थायराइड ग्लैंड के थ्रू क्या है, सीक्रेट किया जाता है, ये मत भूल जाना, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड का, दोनों चीज़ों का ऑफकोर्स ये एक एसेंशियल पार्ट है, राइट। जो थायरोक्सिन है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को रेगुलेट करता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। इसीलिए हमको आयोडाइज्ड सॉल्ट को कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर वर्किंग के लिए नेसेसरी है, ठीक है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो आपको गोइटर हो सकता है। गोइटर में क्या हो जाता है, उसका एक कह सकते हो एक सिम्टम है, वो है स्वॉलन है, कि आपकी जो नेक है वो स्वेल कर जाती है, स्वेल अप हो जाती है, ठीक है। और हमने इसके जो थे डिसऑर्डर्स देखे थे, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, आई होप कि आपको याद हो अब तक। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ शुगर भी कह देते हैं आपका, देसी भाषा में इंडिया में शुगर डायबिटीज़ को कहा जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ एक डिसीज़ है जिसमें जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। जो डायबिटीज़ है वो ना, डायबिटीज़ 2 पार्ट्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगी, मैंने अब आज तक शायद किसी भी वीडियो में क्वेश्चन नहीं दिया, ये फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें क्वेश्चन दिया होगा आपको मैंने, मतलब कि आपको सर्च करना है, आपको क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है,
और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। एक है आपका डायबिटीज मेलिटस, फर्स्ट वन इज दिस वन, ओके, फर्स्ट। एंड सेकंड है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। सो इन दोनों में आपको क्या करना है, मेरे को इन दोनों में अंतर बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कि होता क्या है इनमें, राइट, ये आपको बताना है। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट, इसका कॉज क्या है, डायबिटीज़ का कॉज क्या है? अगर आपका जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, मतलब कि पेनक्रियास कम इंसुलिन को सीक्रेट करने लग जाए, तो फिर जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो पेनक्रियास है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन की ही कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर ब्लड में जो शुगर है, ग्लूकोज का लेवल है, वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है कि आपको इंसुलिन हार्मोन की ना इंजेक्शंस दिए जाती हैं, इट इज़ इट्स ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बस लास्ट पेज पे आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कि कैसे फीडबैक दिया जाता है अगर कुछ भी होता है, वो पहले वैसे मैंने पढ़ लिया था, ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली मगर फिर से पढ़ रही है। रिवीजन गाइस, रिवीजन। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हॉर्मोन्स हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, राइट। अगर किसी भी हार्मोन का एक्सेस होगा, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में कोई भी हार्मोन सीक्रेट होगा, या किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब कि कुछ कम अमाउंट में कोई भी हार्मोन सीक्रेट होगा, तो फिर वो जो चीज़ है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। मतलब कि ना ही कोई हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होना चाहिए और ना ही कोई हार्मोन कम अमाउंट में सीक्रेट होना चाहिए, ठीक है। जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो इस चीज़ को श्योर रखता है कि जो हार्मोन है वो एक, जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो एक प्रिसाइज क्वांटिटी में और एक सही समय पर ही सीक्रेट हो, ठीक है। मतलब कि एक सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में, और एक सही समय पर ही सीक्रेट हो। सही समय मतलब कि हर एक चीज़ का ना एक सही समय होता है, राइट। अगर मतलब कि आपका जो है कौन से हार्मोन की एग्जांपल लूँ कि अगर वो सही समय पे सिक्रीट ना हो, राइट। मान लो हम शुगर का जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, और कुछ ऐसा अलग सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लो हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सही समय पर सीक्रेट ना हो, सही समय पर सीक्रेट मीन्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट डज नॉट सीक्रेट, मीन्स वो क्या है, उसके कई सालों बाद सीक्रेट होता है। सो टिल द टाइम इट डज नॉट सीक्रेट, द man in which its deficiency is seen, in which it is not secreted, would not be able to reproduce, right? And he and secondary sexual characters would not be seen in him, right? सो सही समय पर सीक्रेट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने क्या है एग्जांपल लिया है इंसुलिन का, आई थिंक हाँ यहाँ इंसुलिन का ही लिया है। फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड इज एज फॉलोज। मतलब कि जो आपका शुगर लेवल है उसको ब्लड में कैसे कंट्रोल किया जाता है वो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। मान लो पहले आपका शुगर लेवल है वो राइज कर गया, राइज करने के बाद जो आपकी पेनक्रियास के सेल है उसको क्या करेंगी, डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, वैसे इसके बीच मैंने कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं लिखा कि पहले वो हाइपोथैलेमस के पास जो है सिग्नल जाएगा, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सब आएगा इसमें, राइट। पहले ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, उसके बाद वो क्या है, पेनक्रियास की जो सेल्स है उसने उनको उसको डिटेक्ट कर दिया। उसके बाद जो आपका इंसुलिन हार्मोन है उसकी सिंथेसिस हुई, उसकी फॉर्मेशन, उसका सिक्रीशन हुआ, सिंथेसिस भी हुआ, ठीक है। उसके बाद जो इंसुलिन हार्मोन आपका सीक्रेट हुआ, जो ब्लड शुगर लेवल है वो नीचे गिर गया होगा, ठीक है, मतलब कि फॉल कर गया। उसके बाद क्या है, आप क्या करते हो, आपका जो ग्लैंड है वो मोर मतलब कि सही मात्रा, जो नॉर्मल मात्रा होती है उसमें इंसुलिन को सीक्रेट करने लग जाता है, राइट। सो जब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है फॉल हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, पेनक्रियास है, पेनक्रियास के सेल्स है वो फिर से क्या है उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे। उस चीज़ को डिटेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो इंसुलिन की सीक्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, ओके।
सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर था ये? कौन सा चैप्टर था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या बायोलॉजी का 7 चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो हमने ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो अपडेटेड रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और अपडेटेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, राइट, याद है ना, डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस का। तो वो आपको उसका जो रिप्लाई है, जो कमेंट है, वो ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो उनको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो subscribe to my channel for more such updates. Thank you for watching the video till now. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.